آپ ذرا تصور کریں ایک باپ کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا مر جائے اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کا جنازہ اور تدفین کرے. ایک باپ کے لیے اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے. اگر یہ حدیث کی بات نہیں ہوتی, واللہ اگر یہ حدیث کا مسئلہ نہیں ہوتا, اگر ایسا بتایا جاتا کہ ایک عورت نے ایسا کیا ہے, ہمارا دل نہیں مانتا, ہمارا دل یقین نہیں کرتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا, ایسی بھی مثال ہو سکتی ہے کیا. لیکن یہ حدیث واقعہ بالکل سچا ہے. کسی بھی اینگل سے کسی بھی موقع پر شوہر نامدار کو یہ پتہ نہیں چلنے دیا گیا کہ آپ کا جو بیٹا ہے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا انس آئے ہیں اور اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے. کہا کیا ام سلیم کے گھر کا بچہ ہے, کیا ام سلیم کو بچہ ہوا ہے؟ حضرت انس نے کہا اللہ کے نبی ہاں انہی کا بچہ ہے اور میں لے کر کے آیا ہوں. حضرت انس نے کہا اللہ کے نبی اس بچے کا آپ نام رکھ دیجئے. اللہ کے نبی نے اس بچے کا نام رکھ دیا عبداللہ. عبداللہ نام رکھا گیا اور اس کے بعد لے کر کے حضرت ام سلیم کے پاس دوبارہ لایا گیا. وہ بچہ جوان ہوا اور جوان ہونے کے بعد بچہ مرد مجاہد بنا, جہاد کرنے والا مجاہد بنا. اور جب فارس کی لڑائی ہوئی یہی نوجوان اس میدان کارزار میں جا کر کے شہید ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ایک بچہ چھینا اور اس کے نتیجے میں جو پھل اللہ نے دیا تو ایک ایسا بچہ دیا جو وقت کا نوجوان بنا. لوگ کہا کرتے تھے آج کے دور کا اگر سب سے اچھا نوجوان ہے تو یہ عبداللہ ہے. وقت کا بڑا نوجوان بنا, وقت کا مرد مجاہد بنا. ایک ماں کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. حی علی الفلاح. محترم حاضرین جمعہ, سامعین کرام, دینی ملی بھائیوں اور اسلامی ساتھیوں, ایک لمبی سی حدیث ہے اور اس حدیث کے اندر ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ذکر کیا گیا ہے. اس حدیث کو حدیث کی کئی کتابوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, صحیح مسلم کے اندر کچھ حصے اس کے موجود ہیں. اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر بھی اس واقعے کا کچھ تھوڑا تھوڑا حصہ ذکر کیا گیا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے, آپ نے سنا ہوگا اور بارہا سنا ہوگا. میں آج اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس پورے واقعے کو ذرا ہم پھر سے سنتے ہیں اور اس بارے میں جو حدیث آئی ہوئی ہے اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کر کے اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں جو پیغام ہمارے لیے چھپا ہوا ہے وہ پیغام جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے خطبے کے لیے جس حدیث کے الفاظ کو میں نے چنا ہے وہ سنن بیہقی کے اندر موجود ہے, مسند احمد کے اندر موجود ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کچھ اس طرح ہے کہ قال مالکن, مالک کہتے ہیں. یہ مالک کون ہے؟ آگے روایت کے اندر مذکور ہے کہ ابو انس, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد, مشہور صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم فل نیم لیتے ہیں تو بولتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس روایت میں جو لفظ آ رہا ہے مالک, جو نام آ رہا ہے مالک, اس سے مراد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو ہیں, والد ہیں. تو مالک نے اپنی بیوی سے کہا, اور ان کی بیوی کا نام تھا ام سلیم. گویا ام سلیم جو ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو ہیں مالک. تو مالک اپنی بیوی ام سلیم سے کہتے ہیں کہ ان ھذا الرجل, یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یحرم الخمر, کہ یہ جو آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
یہ اب شراب کو ہمارے لیے حرام کر دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی مشکل بات ہے۔ یہ اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت انس کے جو ابو تھے، جب شراب کا حکم مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، اور اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا کہ مسلمانوں اب تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، اس وقت کی بات ہے کہ یہ مالک اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اب تو شراب کو بھی حرام بول رہے ہیں۔ شراب جو ہمارے کھانے پینے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس کے بغیر ہمارے دن نہیں گزرتے ہیں، انہوں نے اب شراب کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ اب ہمارے پاس بچا کیا؟ فانطلقا، یہ مدینہ سے نکل گئے، اور نکلنے کے بعد حتی اتی الشام، ملک شام سیریا چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے تو فہلک ہناک، ان کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا، اور وہاں پہ یہ مار دیے گئے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اب بیوہ ہو گئی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئی تھی، ان کے شوہر مسلمان نہیں تھے، یہ سیریا چلے گئے، وہاں پہ ان کو مار دیا گیا۔ جب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی، ان کے شوہر کو جب مار دیا گیا، تو مکہ کے اندر ایک بڑا مشہور بڑا بہادر آدمی تھا، اور مکہ کا ایک بڑا خوبصورت آدمی تھا جن کا نام تھا ابو طلحہ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سارے لوگ جانتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو جب پتا چلا کہ ام سلیم کے شوہر کو مار دیا گیا ہے، تو انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عرب کی مشہور اور خوبصورت عورتوں میں سے شمار کی جاتی تھی۔ ام سلیم بھی بہت خوبصورت تھی۔ ابو طلحہ نے پیغام نکاح دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم کا جواب آیا کہ یا ابا طلحہ، کہ اے ابو طلحہ، ما مثلک یرد، تم جیسے انسان جب کسی کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں تو اس کے پیغام کو رد نہیں کیا جاتا ہے۔ تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس خوبصورتی ہے، تم بہادر ہو، مکہ کے بڑے بہادروں میں سے تم شمار کیے جاتے ہو۔ مکہ میں یا مدینہ میں بہت سارے تمہارے باغات موجود ہیں، اور تمہارا پیغام جب کسی لڑکی کو کسی عورت کو دیا جائے نکاح کا، تو اس کو رد نہیں کیا جاتا ہے، فوراً اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اتنا اچھا رشتہ اور اتنا اچھا نوجوان، اتنا اچھا آدمی ملنا مشکل ہے۔ اس لیے جب تمہارا رشتہ کسی کو دیا جائے تو اس رشتے کو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ لیکن میرا معاملہ یہ ہے وَلَكِنَّكَ امْرَؤٌ کافر، لیکن تم ایک کافر آدمی ہو اور میں ایک مسلمان عورت ہوں، میرے لیے جائز نہیں ہے تمہارے ساتھ نکاح کرنا۔ آپ ذرا دیکھیں، اور ایمان کا لیول آپ دیکھیں، آج کی یہ دنیا، جبکہ دنیا کے اندر مفاد کا ہر طرف چرچا ہے، آج جب رشتے دیکھے جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لڑکا توحید والا ہے کہ نہیں، لڑکے کے اندر عقیدہ ہے کہ نہیں، ایمان ہے کہ نہیں، وہ لڑکا نماز کا پابندی کرنے والا ہے کہ نہیں، اس کے اندر اخلاق ہے کہ نہیں۔ ان ساری چیزوں کو آج جہاں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور صرف ایک چیز دیکھی جاتی ہے، لڑکا اس کے پاس دولت ہے کہ نہیں، اس کے پاس مال و دولت ہے کہ نہیں، اس کے پاس پراپرٹی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ مل جائے تو انسان ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پیغام اس واقعے کے اندر دیکھیے، ام سلیم کہتی ہے کہ تم ایک کافر آدمی ہو اور میں ایک مسلمان عورت ہوں، میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ آج کا معاملہ دیکھیے، کالجوں میں، یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بڑی تعداد میں بھاگ رہی ہیں، اور ارتداد کی ایک جو لہر آئی ہوئی ہے، بہت افسوسناک لہر ہے۔ آپ دیکھیں، بڑی تعداد، معاملہ یہ ہے ہماری بچیاں نان مسلم جو اسکول ہیں وہاں پڑھتی ہیں، اور اگل بگل میں رہنے والے نوجوانوں کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے دین کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے اسلام کو، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر ایمان کی جو محبت ہونی چاہیے، اسلام کا جو ویلو ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہونا چاہیے، وہ ہے نہیں، ان کو بتایا نہیں گیا ہے، اسی لیے تھوڑا سا فائدہ دیکھ کر کے اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہے۔ ام سلیم نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہوں، تمہارے پاس دولت تو ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، لیکن تمہارے پاس اسلام نہیں ہے۔ اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا دیکھو وہ سب باتیں سنو،
जमाने की बातों को सुनो, ये सारे इस्लाम के मामले जो है छोड़ दो। अभी मामला ये है कि अगर तुम मेरी निकाह में आ जाती हो तो मालो दौलत के तुम्हारे ऊपर अंबार लगा दिए जाएंगे। हजरत उम्मे सुलैम ने पूछा, तुम क्या दे सकते हो मुझे? कहा, अस्सफरा वल बैदाउ, सोने चांदी के जितने भी सोने चांदी की हैसियत मेरे अंदर मौजूद है, सब मैं ला करके तुम्हारे कदमों में रख सकता हूं। तुम अगर महर की बात करोगी, तुम्हें अगर महर चाहिए, वल्लाह मेरे पास बहुत महर है, बहुत सोना चांदी मुझे दिया गया है, मैं वो सारा सोना और चांदी तुम्हारे कदमों में ला करके रख दूंगा। इसलिए इस्लाम और ईमान की बातों को ताक रख करके मुझसे शादी कर लो और मेरे निकाह में आ जाओ। उम्मे सुलैम का अगला जवाब, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मा उरीदु मिनका इल्ला इस्लाम, मुझे तुम्हारा सिर्फ इस्लाम चाहिए, मुझे तुम्हारे सोने और चांदी से कोई सरोकार नहीं है। अल्लाहु अकबर। ऐसी औरतों की और ऐसी लड़कियों की आज उम्मत को जरूरत है। जवाब कितना खूबसूरत, तुम्हारे पास सोने, तुम्हारे पास चांदी, सब तुम्हारे पास होंगे, लेकिन मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा इस्लाम चाहिए। अगर तुम इस्लाम ले आते हो, व इन तुस्लिम, अगर इस्लाम की दौलत तुम अपना लेते हो और इस्लाम में अगर दाखिल हो जाते हो, तो मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, ये इस्लाम मेरे महर के लिए काफी हो जाएगा। एक अनोखी शादी, एक ऐसी पेशकश जिसकी मिसाल आज दुनिया में नहीं मिल सकती। कितनी बेहतरीन बात उम्मे सुलैम कर रही है, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, तुम्हारी चांदी नहीं चाहिए, महर में मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो ये है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लेते हो, तुम्हारे इसी इस्लाम कबूल करने को मैं महर बना लूंगी और यही हमारे महर के लिए काफी हो जाएगा। हजरत अबू तलहा कहते मामला ठीक है, लेकिन ये सारा मामला तय कहां पाएगा? कौन होगा हमारे बीच में जो खड़े होकर के ये सारे मामलात को हल करेगा? उम्मे सुलैम कहती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, जाओ तुम अपना मामला मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जा करके रखो। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां से निकलते हैं और सीधा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुंचते हैं तो अल्लाह के नबी दूर से देख लेते हैं कि अबू तलहा आ रहे हैं। फलम्मा रआहू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि अबू तलहा आ रहे हैं, अल्लाह के नबी ने कहा, क़द जाअकुम अबू तलहा। सारे सहाबा के साथ अल्लाह के नबी बैठे हुए थे। कहा अल्लाह के नबी ने के साथियों, देखो अबू तलहा आ रहे हैं। वग़ुर्रतुल इस्लाम बैना ऐनैहि, और मैं देख रहा हूं कि इस्लाम की चमक उनके दोनों आंखों में दिखाई दे रहा है। अल्लाह के नबी थे जो चेहरों को देख करके, हालात को देख करके इंसान की कैफियत को अल्लाह के नबी जान जाया करते थे। अभी अबू तलहा आ ही रहे हैं, अल्लाह के नबी अपने साथियों को बोलते हैं कि साथियों अबू तलहा आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूं उनके आंखों में इस्लाम की चमक नजर आ रही है। आते हैं और अल्लाह के नबी के सामने पूरा मामला रखते हैं कि अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा मामला हो गया है और उम्मे सुलैम ने ये शर्त रखी है और मैं इसके लिए तैयार हो गया हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, मुसलमान हो गए हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मजलिस में हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी उम्मे सुलैम से कर दिया। कितना पाक ये रिश्ता, और अल्लाह के नबी के दौर की शादियां कितनी सादा और कितनी सिंपल, न कोई तैयारी है, न बहुत ज्यादा प्लानिंग है, न कुछ है। अल्लाह के नबी के पास जाते हैं, मामला रखते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मजलिस में अल्लाह के नबी उस सहाबी का हजरत उम्मे सुलैम से अल्लाह के नबी शादी कर देते। शादी कर लेने के बाद रिवायत के अल्फाज हैं कि अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उम्मे सुलैम साथ में दोनों रहने लगे, यहां तक कि उनसे एक बच्चा पैदा हुआ, एक छोटा एक लड़का पैदा हुआ। मोहब्बत का एक रिश्ता शुरू हुआ है और इस रिश्ते में अब आजमाइशें आ रही हैं। इंसान की जिंदगी में आजमाइशें आती हैं और कभी कभी आजमाइशें ऐसी आती हैं कि इंसान बिखर जाता है, लेकिन इंसान के पास अगर ईमान है, इंसान के पास अगर तौहीद है, इंसान को अगर अल्लाह पर यकीन है, तो ये मुसीबतें उसको बिखरने नहीं देती। मुसीबतों में घिर करके भी बंदा संवर जाता है। हजरत अबू तलहा और हजरत उम्मे सुलैम के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। रिवायत के अल्फाज है कि काना अबू तलहा युहिब्बुहु हुब्बन शदीदा, उस बच्चे से अबू तलहा बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे और बहुत ज्यादा उस बच्चे को चाहा करते थे। फमरिदा मरदन शदीदा, एक मर्तबा की बात है, वो बच्चा बीमार हो गया, और जब वो बच्चा बीमार हो गया, रिवायत के अल्फाज है फतवादा अबू तलहा अंदर से टूट गए। बच्चे की बीमारी को देख करके, उनकी तकलीफ को देख करके
इतना अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु सोचा करते थे कि हमेशा फिक्र में पड़े रहते थे और हमेशा इसी गम में रहते थे कि बच्चा का क्या होगा, और इसी फिक्र में हमेशा पड़े रहते थे, क्योंकि इस बच्चे से हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, बहुत लगाव इस बच्चे से हो गया था। और जब बच्चा बीमार हुआ है, उसकी धड़कनें जब अटकने लगी है, अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गमगीन रहा करते थे, बहुत परेशान रहा करते थे। जिंदगी का मामूल ये था कि सुबह सुबह उठते थे और फजर की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा करते थे। ये सब मैं हदीस के अल्फाज पढ़ रहा हूं, कुछ अपनी तरफ से नहीं। उनका मामूल ये था कि फजर की नमाज जाकर के अल्लाह के नबी के साथ पढ़ते थे और फजर की नमाज अदा करने के बाद वो जिक्र अस्कार में और अल्लाह के नबी के साथ लगे रहते थे, यहां तक कि दिन का आधा हिस्सा गुजर जाता था। यानी पूरा आधा दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू तलहा रहा करते थे, यही मामूल था। और जब ज़ोहर का टाइम आता था तो घर के अंदर वापस आते थे और उसके बाद खाना खाते थे, कैलूला करते थे, थोड़ी देर रुकते थे, फिर वो वापस चले जाते थे असर के टाइम में। और जो असर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते थे, सीधा वापस ईशा के बाद ईशा की नमाज पढ़ के आया करते थे। ये अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रोजाना का मामूल था कि सुबह उठते, सीधा अल्लाह के नबी के पास पहुंचते, फजर की नमाज पढ़ते और दिन का आधा हिस्सा जब गुजर जाता घर वापस आते, खाना खाते, कैलूला करते और कैलूला करने के बाद फिर से असर की नमाज पढ़ने के लिए चले जाते और जो असर में निकलते सीधा ईशा की नमाज पढ़ करके दोबारा घर के अंदर तशरीफ लाया करते थे। एक मर्तबा की बात है, हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास असर के टाइम। बच्चा बहुत बीमार था, बीमारी बढ़ी और रिवायत के अल्फाज है फमाता, वो बच्चा मर गया, उस बच्चे का इंतकाल हो गया। अब उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक सबर, एक मिसाली सबर, ये वाकया यहां से आपने सुना है कि जब बच्चे का इंतकाल हो गया तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने घर वालों से, करीब करीब के लोगों से कहा कि तुम में से कोई इंसान अबू तलहा को खबर नहीं करेगा कि उसके बेटे का इंतकाल हो गया है। कोई भी अबू तलहा को आने के बाद कोई नहीं बताएगा कि उनका जो बेटा है उस बेटे का इंतकाल हो गया है, कोई खबर नहीं करेगा। जब तक मैं नहीं बता दूंगी कोई अबू तलहा को नहीं बताएगा कि तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हो गया है। इधर जब बच्चा का इंतकाल हो जाता है, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जल्दी से उस बच्चे को ढकती हैं, उसको तैयार करती हैं और उसके बाद एक चादर से ढक करके घर के किनारे एक कोने में बच्चे को ले जाकर के रख देती हैं। ये सब्र आमतौर पर औरत को जब बयान किया जाता है समाज मुआशरे के अंदर तो ऐसा दिखाया जाता है कि औरतों के अंदर बर्दाश्त नहीं होता, औरतें सब्र नहीं कर पाती हैं, औरतें बहुत जज्बाती होती हैं। लेकिन जब औरत के पास ईमान हो तो फिर मिसाल ऐसी आती है जिस वाकये के अंदर मौजूद है। कितने दिल और गुर्दे वाली बात है कि बच्चा अपना है और अपना बच्चा अब इंतकाल हो गया है तो उस बच्चे को अपने हाथ से रेडी कर रही है, नहला धुला करके उसके ऊपर चादर डाल करके घर के कोने में रख देती है। उसके बाद जब ईशा का नमाज हो जाता है, अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईशा की नमाज पढ़ करके आते हैं। वकान माहू उनासुन, मस्जिद से और बहुत सारे लोग अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले और घर के अंदर दाखिल हो गए। औरत ने खाना तैयार किया, उम्मे सुलैम ने खाना तैयार किया और खाना तैयार करने के बाद जितने भी लोग आए हुए थे सबको खाना दिया और सबको खाना खिलाया। ये भी बड़ी बात है, घर के अंदर लाश पड़ा हुआ है, बच्चे का इंतकाल हुआ है। औरत के जिगर को देखिए, औरत के सब्र को देखिए और औरत के अंदर एक मिसाली सब्र का नमूना देखिए। सिर्फ शौहर नहीं, शौहर के साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उन सारे लोगों को हजरत उम्मे सुलैम अपने हाथ से खाना बना करके खिलाती हैं। सारे लोग जब खाना खा लेते हैं, खरजल कौम के लोग निकल जाते हैं। हजरत उम्मे सुलैम अपने शौहर के लिए बिस्तर तैयार करती हैं और बिस्तर पे अपने शौहर को लिटाती हैं, खुद निकलती है और रिवायत का अल्फाज है ततय्यबत, खुशबू लगाती है, अपने आप को तैयार करती है। तसन्नात, वो तमाम तरीके जो बनने और संवरने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, उम्मे सुलैम वो सारी तरीके, वो सारी चीजें अपने ऊपर लाती है, अपने आप को संवारती है, अपने आप को अपने शौहर के लिए बनाती है, खुशबू लगाती है और अपने शौहर के पास जाती है। ये बड़ी बात है। एक औरत के बनने संवरने का सबसे बड़ा हक उसका शौहर रखता है। औरत को खूबसूरत
खूबसूरत देखने का सबसे बड़ा हक उसका शौहर रखता है। आज का मुआशरा जब बिगड़ा है तो माहौल ये बना है, हमारी औरतें जब बाहर जाती हैं तो बन सवर के जाती हैं, और जब शौहर के पास रहना होता है वही गंदे कपड़े, वही मेले कपड़े, वही परागंदा बाल। ये एक मोमिना औरत की शान नहीं है। मोमिना औरत की शान ये है कि वो अपने शौहर के पास हमेशा बन करके, सवर करके, अपने आप को सवार करके रखती है। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने आप को सवारती है, अपने आप को बनाती है, अपने आप को तैयार करती है और जा करके अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सो जाती है। क्या दिल है, क्या सब्र है, कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। उस औरत ने अपने दिल पर कैसा पत्थर रखा होगा और किस तरह से इस मैटर को हैंडल किया होगा, जरा आप तसव्वुर करें। ये ऐसा वाकया है, वल्लाह अगर ये नबी की जुबानी नहीं होती, ये हदीस का मामला नहीं होता, हम यकीन नहीं करते कि ऐसा भी हो सकता है। अगर ये हदीस की बात नहीं होती, वल्लाह अगर ये हदीस का मसला नहीं होता, अगर ऐसा बताया जाता कि एक औरत ने ऐसा किया है, हमारा दिल नहीं मानता, हमारा दिल यकीन नहीं करता। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसी भी मिसाल हो सकती है क्या? लेकिन ये हदीस वाकया बिल्कुल सच्चा है। हजरत उम्मे सुलैम अपने शौहर के साथ सोती हैं और सोने के बाद मियां बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं वो ताल्लुक भी कायम किया जाता है। कैसे अपने आप को, अपने जज्बात को, अपने गम को, अपने इमोशन को, अपने सारे दर्द को कैसे अपने दिलों के अंदर उस औरत ने छुपाई होगी, उस सहाबिया ने कैसी छुपाई होगी। आप जरा तसव्वुर करें, आप जरा सोचें। शौहर जो एक एक बात बीवी का देख करके पता लगा सकता है, बीवी क्या सोच रही है, बीवी के दिल में चल क्या रहा है, लेकिन उस सहाबिया के ईमान को देखिए, उनके सब्र को देखिए। शौहर को पता नहीं चला, इज़्दिवाजी ताल्लुक भी कायम हो गया। किसी भी एंगल से, किसी भी मौके पर शौहर नामदार को ये पता नहीं चलने दिया गया कि आपका जो बेटा है उस बेटे का इंतकाल हो गया है। फजर का टाइम हो गया। फजर का टाइम हो जाने के बाद फजर से पहले जब अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु जागे तो उम्मे सुलैम ने कहा कि मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहा क्या मसला है बताओ। कहा मैं कहना ये चाहती हूं कि अगर कुछ लोग, कौम के कुछ लोग अगर दूसरे लोगों को कोई सामान दे, आरियतन दे, अमानत के तौर पर दे, और कुछ दिनों के बाद अगर सामान मांग ले तो क्या उन लोगों को इनकार करने का हक हासिल है? तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता भाई, जिसका सामान है जब तक इस्तेमाल करने के लिए दिया है दिया है, अब जब वो मांग रहा है तो वो इनकार नहीं कर सकता, उसका सामान है वो कभी भी ले सकता है। कहा इन्नल्लाह कद आरकल्लाहु इब्नत, अल्लाह ने जो आपको एक बेटा दिया था आरियतन, अमानत के तौर पर, अल्लाह ने उस बेटे को वापस ले लिया है। क्या ईमान है, और शौहर को बताने का क्या अंदाज है, और कैसे इस मसले को डील कर रही है। आप देखें, कोई बहुत बड़े कॉलेज की पढ़ी हुई नहीं, बहुत ज्यादा एजुकेशन वाली नहीं, बहुत ज्यादा तालीम दुनियावी नहीं है, लेकिन नबी की तरबियत वाली वो सहाबिया है। नबी ने उस सहाबिया की तरबियत की है। अंदाज देखो कितना प्यारा। कहते हैं कि एक बच्चा जो अल्लाह ने हमें अमानत के तौर पे दिया था, जिस बच्चे से आप बहुत मोहब्बत करते थे, जिस बच्चे की बीमारी आपको तड़पा रही थी, उस बच्चे को अल्लाह ने वापस ले लिया है। फस्बिर, आप सब्र कर लीजिए, अल्लाह से सवाब की उम्मीद कर लीजिए। क्या कर सकते हैं, वो अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह ने वापस ले लिया। अल्लाह अकबर, क्या अंदाज है। आज की औरतें, अगर कोई ऐसा बड़ा वाकया हो जाए, शौहर किस हालत में है, कहां है, क्या कर रहा है, इन सारी चीजों से कोई सरोकार नहीं। कॉल करते सबसे पहले ही मामला होता कि देखो ऐसा ऐसा हो गया है, पहले ही उसके नतीजे में शौहर कहीं गिर जाए, पड़ जाए, इन सारी चीजों का ख्याल नहीं किया जाता। सीखिए कि कैसे मामलात को डील किया जाता है, मसाइब में एक मोमिन का स्टैंड कैसा होता है और सब्र कैसे की जाती है। आप सीखिए इस औरत से। कहा अल्लाह ने जो अमानत के तौर पे बच्चा दिया था, उस बच्चे को अल्लाह ने वापस ले लिया है। आप सब्र कर लीजिए, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह का सामान है, अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह ने वापस ले लिया है। हम भी अल्लाह के हैं, हमको भी अल्लाह ले लेंगे, हमारी भी रूह कब्ज कर ली जाएगी। हम कुछ नहीं बोल सकते, हम अल्लाह की अमानत है, हमारे बस में कुछ नहीं। वो बच्चा अल्लाह का दिया हुआ था, अल्लाह ने वापस ले लिया। रिवायत के अल्फाज फ़ग़ज़िब अबू तलहा, अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गुस्से में आ गए और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरा बेटा जो दिल का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, मैं शदीद उस बच्चे से मोहब्बत करता था, मेरे बच्चे की लाश पड़ी हुई है और तूने मुझे खाना खिलाया, मैंने खाना भी खा लिया, मेरे बच्चे की लाश पड़ी हुई है और मैंने तुमसे ताल्लुक भी कायम किया, क्यों तुमने ऐसा किया।
गुस्ल करते हैं और सीधा फजर की नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के नबी के पास पहुंचते हैं। नमाज खत्म होती है और नमाज के बाद अल्लाह के नबी से बोलते हैं कि अल्लाह के नबी आप देखिए उम्मे सुलैम ने आज ऐसा ऐसा मामला मेरे साथ किया है, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है और ऐसा ऐसा मामला उम्मे सुलैम ने हमारे साथ किया, बताया नहीं मुझको। अल्लाह के नबी ने खुशी का इजहार किया और उम्मे सुलैम के उस सब्र को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के नजर से देखा और अल्लाह के नबी का जवाब था बारकल्लाहु लकुमा फी लैलतिकुमा, अल्लाह तबारक व तआला तुम दोनों की रात में अल्लाह तबारक व तआला बरकत दे। वो रात जो तुम लोगों ने इतनी मुसीबत वाली रात में खुशी के मौके के तौर पे गुजारी है, वो जो रात तुम्हारी गुजरी है, वो जो तुम्हारा ताल्लुक कायम हुआ है, अल्लाह उस रात में बरकत दे। अल्लाह के नबी का दुआ और उसके बाद हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा बाद में दोबारा हामिला हो जाती। कहते ना, एक इंसान जब अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ता है और जब अल्लाह कोई चीज किसी से छीनता है और वो बंदा जब सब्र कर लेता है तो अल्लाह उससे कहीं ज्यादा बेहतर देता है। जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, हो सकता है आपका सबसे महबूब चीज, आपका सबसे चहेता चीज, दिल का सबसे करीब कोई चीज हो, अल्लाह अगर उसको छीन ले, आप सब्र कर ले जाएंगे। रब्बुल आलमीन का वादा है, रब का दस्तूर है, अल्लाह देता है और उससे बेहतर देता है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा फिर से हामिला हो गई। रिवायत के अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं भी निकला करते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सुलैम को अपने साथ लेकर के जरूर जाया करते थे। बहुत काबिल औरत थी और बहुत माहिर औरत थी, जर्राही की बहुत माहिर औरत थी, यानी मरहम पट्टी करने में बहुत माहिर औरत थी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा। जितनी भी जंगें हुई हैं, हर जंग में अल्लाह के नबी उम्मे सुलैम को लेकर के जाते थे और जहां भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के लिए निकलते थे, हर सफर में अबू तलहा उम्मे सुलैम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। अल्लाह के नबी सफर में निकले और जब वापसी का टाइम हुआ एक सफर से, तो मदीना के जब करीब पहुंचे तो उम्मे सुलैम को दर्द जह शुरू हुआ। दर्द से मतलब वो जो प्रेगनेंसी यानी डिलीवरी के टाइम जो दर्द शुरू होता है वो बड़ी खतरनाक दर्द होता है, क़यामत का एक मंजर होता है। एक औरत के लिए वो बहुत भारी चीज होती है, वो एक औरत ही बता सकती है कि उसमें कितनी तकलीफ और कितना भारी वो मरहला होता है। अब इन मदीना के करीब पहुंचे कि उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा का वो जो दर्द प्रेगनेंसी वाला या वो जो डिलीवरी के टाइम का जो दर्द होता है वो दर्द शुरू हुआ। अबू तलहा को बताई कि देखिए ऐसा ऐसा मामला हो गया है, लगता है बच्चे की पैदाइश होगी। अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन अल्लाह के दरबार में गए और अल्लाह से दुआ करने लगे कि अल्लाह तू जानता है तेरे नबी के साथ में जब निकलता हूं तो तेरे नबी के साथ में दाखिल भी मदीने के अंदर साथ साथ होता हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तेरे नबी कहीं गए हों और मैं और उम्मे सुलैम साथ न हो, और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ में निकला हूं और अल्लाह के नबी मदीने में अकेले दाखिल हो गए हों और मैं पीछे रह गया हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। अल्लाह, ये अजीब मामला हो रहा है, मदीने में जाने से पहले एक दर्द उठा है, अगर ये मामला हो गया अल्लाह के नबी मदीने में चले जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। अल्लाह, मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। इधर दुआ किए, उधर असर ये हुआ कि वो जो दर्द उठा था फिर से वो दर्द खत्म हो गया। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा अबू तलहा को बताती है कोई मामला नहीं है, वो जो दर्द है वो खत्म हो गया। मदीना पहुंचते हैं और मदीना पहुंचने के बाद दोबारा वो दर्द उठता है और उसके बाद घर के अंदर एक बच्चा पैदा होता है। फौरन उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा उस बच्चे को लेती हैं और अपना बड़ा बेटा हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाती हैं और उसके बाद कहती हैं लो ये बच्चा अपने गोद में और सीधा लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ। बच्चे की पैदाइश के बाद फिक्र ये कि बच्चा मेरा दीनदार हो जाए, बच्चे के अंदर दीनदारी की बुनियाद पड़ जाए। इस माँ को देखिए, एक बच्चे की तरबियत कैसी करनी है, एक बच्चे को सबसे पहले करना क्या है। आप इस औरत के वाकये से देखिए, अपने बड़े बेटे को बुलाया, कहा अनस ये बच्चा है, इसको लेकर के सीधा अल्लाह के नबी के पास जाओ और ये बच्चा जितना भी रोए, जितना भी चिल्लाए, इसके मुंह में कुछ भी डालने की कोशिश मत करना, सीधा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के जाओ। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु उस छोटे से बच्चे को लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम में बिजी थे और बहुत सारे लगाम वगैरह घोड़ों को अल्लाह के नबी पहना रहे थे। अल्लाह के नबी ने देखा अनस आए हैं और उसके हाथ में छोटा सा बच्चा है। कहा क्या उम्मे सुलैम के घर का बच्चा है? क्या उम्मे सुलैम को बच्चा हुआ है? हजरत अनस ने कहा अल्लाह के नबी हाँ उन्हीं का बच्चा है और मैं लेकर के आया हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे पास कुछ है? कहा हाँ, इनकी अम्मी ने अजवा खजूरें दी है। अल्लाह के नबी ने कहा
लाओ। अल्लाह के नबी ने अजवा खजूर लिया, अपने मुंह में उसको दबाया और दबाने के बाद उसको पतला किया और पतला करने के बाद उस छोटे से बच्चे के मुंह में रखा। बच्चा क्योंकि भूखा था अपने जुबान को चलाने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा देखो अंसारी लोग खजूर से मोहब्बत कितना करते हैं, है छोटा लेकिन खजूर की जब महक मिली ये अपना जुबान चलाने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजाक भी किया कि अंसारी खजूर से कितना मोहब्बत करते हैं, ये अंसार का बच्चा है और उसकी खजूर की एक मामूली सी चीज उसके मुंह में पहुंची है और वो बच्चा अपनी मुंह को जला रहा है। हज़रत अनस ने कहा वो अल्लाह के नबी ने तहनीक किया, इसी को तहनीक कहा जाता है। हज़रत अनस ने कहा अल्लाह के नबी इस बच्चे का आप नाम रख दीजिए। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे का नाम रख दिया अब्दुल्ला। अभी अब्दुल्ला नाम रखा गया और उसके बाद लेकर के हजरत उम्मे सुलैम के पास दोबारा लाया गया। वो बच्चा जवान हुआ और जवान होने के बाद बच्चा मर्द मुजाहिद बना, जिहाद करने वाला मुजाहिद बना और जब फारस की लड़ाई हुई यही नौजवान उस मैदान कारजार में जाकर के शहीद हो जाता है। इनकी शादी हुई, रावी हदीस कहते हैं इनसे 9 बच्चे पैदा हुए और कानू क़रउल कुरान, वो सबके सब हाफिज़ कुरान थे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने एक बच्चा छीना और उसके नतीजे में जब फल अल्लाह ने दिया तो एक ऐसा बच्चा दिया जो वक्त का नौजवान बना। लोग कहा करते थे आज के दौर का अगर सबसे अच्छा नौजवान है तो ये अब्दुल्ला है, वक्त का बड़ा नौजवान बना, वक्त का मर्द मुजाहिद बना। एक माँ के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, उसका बेटा इस्लाम के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे। वो मर्द मुजाहिद मैदान कारजार में जाकर के शहीद हो गया, उसके बच्चे हुए और उसके 9 बच्चे सबके सब हाफिज़ कुरान। क्या मकाम अल्लाह ने दिया, क्या मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। इस वाक़ये से पैगाम ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब कोई चीज छीनता है, एक इंसान अगर उस पर सब्र कर ले जाता है तो अल्लाह उससे बेहतर चीज देता है और उससे बेहतर चीज से अल्लाह नवाजता है। वक्त खत्म हो गया। इस वाक़ये का बड़ा पैगाम ये कि जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। हो सकता है आपका चहेता, अपना बच्चा, आपका लड़का अल्लाह तबारक व तआला छीन ले। अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, अल्लाह किसी को भी ले सकता है। इंसान को सब्र करना चाहिए, इंसान को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। इनाम अल्लाह का बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत देता है। सब्र एक ऐसी नेकी है जिसका सवाब बेहद हिसाब रब्बा देता है। कभी जिंदगी में ऐसा लगने लगे कि बहुत मुसीबत है जिंदगी में, बहुत परेशानियां हैं जिंदगी में, तंग हो गई है जिंदगी, कभी ऐसा फीलिंग आए अल्लाह के नबी के जिंदगी को पढ़ना। आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अभी पैदा नहीं हुए हैं, बाप का इंतकाल हो गया है, 6 साल के हुए वालिदा का इंतकाल हो गया है, अपने दादा के पास रहते 8 साल के हुए दादा का भी इंतकाल हो गया, अपने चचा के आगोश में चले गए, जब जरा चचा से मोहब्बत पैदा हुई चचा का भी इंतकाल हो गया, शादी हुई खदीजा से, दिलो जान से मोहब्बत करते थे, एक लम्हा ऐसा भी आया खदीजा का भी इंतकाल हो गया। अब जरा तसव्वुर करें, ये गम नहीं, गम का पहाड़ है। ये एक नहीं कई लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के बड़े सहारे थे, ये सब लूट गए। बच्चियां पैदा हुई, अल्लाह के नबी के तीनों बेटे अल्लाह के नबी की आंखों के सामने एक एक करके दम तोड़ दिए। आप जरा तसव्वुर करें, एक बाप के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है कि उनके आंखों के सामने उसका बेटा मर जाए और वो अपने हाथ से अपने बच्चे का जनाजा और तदफीन करे। एक बाप के लिए इससे बड़ा गम क्या हो सकता है। अल्लाह के नबी के तीनों बेटे एक एक करके अल्लाह के नबी के सामने दम तोड़ देते हैं। 4 बेटियां हुई, 4 में से 3 बेटियां जवानी की उम्र में पहुंची और जवानी की उम्र में पहुंच करके अल्लाह के नबी के सामने इंतकाल कर जाती हैं। ये गम नहीं तो क्या है, अल्लाह के नबी के लिए सदमा नहीं है तो क्या है। एक बाप के सामने उनकी जवान बेटी इंतकाल कर जाए, एक बाप के सामने एक जवान बेटी का जनाजा उठ जाए, ये कितना बड़ा गम हो सकता है। ये अल्लाह के नबी थे, जिंदगी में पैर दर पे गम आए लेकिन कभी शिकवा नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी किसी को ना कुछ बुरा भला कहना, ना इस्लाम के बारे में ना अल्लाह के बारे में बदजनी का शिकार होना। वक्त खत्म हुआ। पैगाम यह है कि जिंदगी में मसाइब आएंगे, परेशानियां आएंगी, इस पर सब्र करने की जरूरत है, बर्दाश्त करने की जरूरत है, सब्र जिंदगी में लेकर के आने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी नेकी है और बहुत बड़ा सवाब का काम है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को सुनने, समझने, अपने दिल के अंदर बैठाने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। हय्या अलल फलाह।